آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بولان واقعے کی۔ بلوچستان میں بولان پاس کے قریب علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ڈھاڈر کے مقام پر دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا۔ دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ انتہائی دشوار گزار اور سڑک سے دور ہونے کے باوجود سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ گئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اس کے علاوہ دہشت گردوں کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے بھی رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں کا معصوم مسافروں کو نشانہ بنانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا دین، اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے پر انڈین اور ملک دشمن سوشل میڈیا غیر معمولی طور پر متحرک ہے۔ ہندوستانی میڈیا اور سوشل میڈیا اور ملک دشمن سوشل میڈیا اکاؤنٹس مل کر مسلسل گمراہ کن، جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا ہے۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ افواج پاکستان پولیس کے جوان روزانہ شہادتیں دے رہے ہیں۔ امن قائم ہونے تک ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کے دوران مزید کہا کہ ہماری ترجیح شرح نمو میں اضافہ کرنا ہے۔ چاروں صوبوں کے عوام حکومتی کارکردگی کا بخور جائزہ لیں گے۔ IMF پروگرام ملکی ترقی کے لیے اہم ہے۔ کابینہ میں نئے ارکان کی شمولیت سے کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ دہشت گردی جو ہے اس نے بہت زور سے پھر سر اٹھایا ہے، اور KP میں اور بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، اس میں ہر روز ہمارے جوان، پولیس کے جوان، پولیس کے افسر، افواج پاکستان کے جوان، ان کے افسر شہادتیں دے رہے ہیں۔ جب تک مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوگا، ترقی کا خواب یہ مکمل نہیں ہوگا، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ چاروں صوبوں میں عوام ریزر لینس کے ساتھ ہر چیز کو غور سے اس کے جائزہ لیں گے۔ IMF کا یہاں پہ مشن آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ وزیر خزانہ، ان کی ٹیم، ان کے ساتھ پوری طرح، اور دوسرے جو ہمارے منسٹرز ہیں ان کے ساتھ پوری طرح وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اب ہمیں ملک کی ترقی کی طرف ہمیں دوڑ لگانی ہے۔ جبکہ افغان عبوری حکومت خطے اور عالمی امن کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی۔ TTP دہشت گرد تنظیموں کے لیے چھتری کا کام کر رہی ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم نے یہ بھی کہا کہ القاعدہ، TTP، BLA اور مجید بریگیڈ جیسی تنظیمیں خطے کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ TTP کے جنگجو سرحدی محفوظ پناہ گاہوں سے پاکستان پر حملے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ کابل حکام دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ The TTP, the Tehreek-e-Taliban Pakistan, with 6,000 fighters, is the largest designated terrorist organization operating from Afghanistan. With safe havens close to our border, the TTP has conducted numerous attacks against Pakistan's soldiers, civilians, and institutions, resulting in hundreds of casualties. The TTP, perceived as enjoying Kabul's patronage, is fast emerging as an umbrella organization for regional terrorist groups whose objectives are to undermine the security and stability of all of Afghanistan's neighbors. Unfortunately, while fighting Daesh, the Kabul authorities have failed to address the threat posed to the region and beyond by other terrorist groups such as Al-Qaeda, the TTP, and the Majid Brigade, which are present in Afghanistan. Over 20 terrorist organizations present in Afghanistan. بنو میں ہونے والے حملے کی مذمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش۔ ممبر صوبہ اسمبلی سارا احمد اور مہوش سلطانہ نے یہ قرارداد پیش کی۔ قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا یہ ایوان بنو میں ہونے والے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ قرارداد میں پاک افواج کی بہترین کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ ایوان بنو کے عوام اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ سارا احمد صاحبہ جی
जनाब स्पीकर साहब, मैं और महविश सुल्ताना ये करारदाद पेश करते हैं। पंजाब असेंबली का ये ऐवान बन्नू में होने वाले बुज़दिलाना और संगदिलाना हमले की शदीद मजम्मत करता है, जिसमें मासूम शहरियों बशमूल बच्चों को मुकद्दस माह रमज़ान के तकद्दुस को पामाल करते हुए निशाना बनाया गया। ये सफ़ाक अमल न सिर्फ पाकिस्तान के अमन, इस्तेकाम और खुद मुख्तारी पर हमला है, बल्कि तमाम इंसानी, इस्लामी और इखलाकी इक़दार के खिलाफ भी है। हम शुहदा के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। ये ऐवान बन्नू के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है, जो दहशत गर्दी के खिलाफ बहादुरी से बरसरे पैकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को वापस किए गए 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट से वफाकी हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल किए गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। 190 मिलियन पाउंड के मामले पर खयानत की गई। 190 मिलियन पाउंड को बददियानती से ऐसे अकाउंट में भेजा गया जिसका पाकिस्तान के ख़जाने से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि ये पैसा हुकूमत और आवाम का है, हुकूमत जिस तरह चाहे ये फ़ंड अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। रकम दानिश यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आज़म दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर जरदारी ने नफरत की बजाय एहतराम और इत्तेहाद की बात की, अवामी इशूज़ पर जोर दिया और हुकूमत की एकतरफा पॉलिसियों पर भी तबसरा किया। सदर ने नई नहरों के हवाले से मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। इस फैसले से वफाक पर निशान लग रहा है, मामले का हल मुत्तफ़िका तौर पर होना चाहिए। सदर ज़रदारी ने नफ़रत के बजाय उम्मीद की बात की, तकसीम के बजाय मुत्तहिद होने की बात की और सारे जो कौम के इश्यूज़ हैं, मीशत से लेके दहशत गर्दी तक, इंटरनेशनल अरीना में फ़िलिस्तीन से लेके कश्मीर का मसला तक, हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात का सदर ज़रदारी ने अपना खिताब में आवाम के असल इश्यूज़ पे गौर किया। एक तरफ़ा फ़ैसला नया कनाल्स इंडस रिवर के से निकालने का जो इशू है उस पे सदर ज़रदारी से बड़ा मुस्बत अंदाज से वार्न किया। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन का शोर तमाशा था वो आपके सामने था। वफाक पे एक स्ट्रेन आ रहा है इस फ़ैसले की वजह से, इसलिए फ़ैसले लेने चाहिए चूँकि अवाम के मसाइल का हल भी हो और वफाक को कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। फ़िरोग़ तालीम के लिए वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ के इनकलाबी फ़ैसले। पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ़ करवाने का फ़ैसला। 80% से ज़ायद नंबर लेने वाले तालिबा को ये कार्ड मिलेगा। स्कूलों की आउटसोर्सिंग से तालिबा की तादाद में 52 और टीचर्स की तादाद में 89% इजाफा होगा। पंजाब में एक ही तर्ज के नए और जदीद स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम करने का फ़ैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है कि पंजाब में मयार तालीम की बेहतरी हमारा अव्वलीन हदफ है। तालिबा को वतन से मोहब्बत और इखलाकियात की पाबंदी की अहमियत से आगाह करना नागुज़ीर है। पढ़ाएं ना पढ़ाएं, तनख्वाह मिल जाती है कि कल्चर तब्दील करना होगा। जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि नवाज शरीफ को हटाकर तरक्की का पहिया रोका गया। धरने किसके नाम से मंसूब हैं सब जानते हैं। तहरीक इंसाफ ने जलाओ घेराव करके मईशत पर हमला किया। तहरीक इंसाफ ने IMF को मुआहिदा रोकने के लिए ख़त लिखे। 9 मई को हसास मकामात को जलाया गया। शहीदों के मुजस्सिमों की बेतौकीरी की गई। मुल्क में आग लगाने वाले वतन अजीज़ के खैरखा नहीं हो सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशार और अफरा तफरी की सियासत करती है। कसूर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दाहिने पर था। शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। मरियम नवाज नौजवानों को गुलैल लाठी नहीं लैपटॉप और किताबें दे रही हैं। आज मेरे बच्चे के हाथ में मुझे गुलेल या बंदूक नहीं चाहिए, लाठी डंडा नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे के हाथ में किताब चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मुझे उसका रोजगार चाहिए। आफरीन है मियां शहबाज शरीफ और उनकी टीम पर कि पाकिस्तान की मईशत संभल चुकी, तरक्की करता मुल्क दोबारा से नजर आने लगा।
नवाज शरीफ को हटाकर तरक्की का पहिया रोका गया। तहरीक इंसाफ ने जलाओ घेराव करके मईशत पर हमला किया। IMF को मुआहिदा रोकने के लिए खत लिखे। 9 मई को हसास मकामात को जलाया गया। शहीदों के मुजस्सिमों की बेतौकीरी की गई। मुल्क में आग लगाने वाले वतन अजीज के खैरखा नहीं हो सकते। PTI इंतशार और अफरा तफरी की सियासत करती है। मुंतखब वजीर आजम को माजूल किया गया, पीछे पहिया चलाया गया, आगे जाते मुल्क को पीछे धक्का दिया गया, मईशत पर हमला किया। कोई शहीदों के मुजस्समों पर लाठियां बरसा सकता है, उनकी बेतौकीरी कर सकता है। पाकिस्तान का दिवालिया बिल्कुल दीवार पर लिखा गया है। ये प्रोपोगंडा था उस इंतशारी जमात का। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि दहशतगर्दों की अलगार फिर से है। फौजी जवान अपने सीनों पर फिर से गोलियां खा रहे हैं। हमारी फौज ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमारी फौज हमारा फख्र है। हमें अपने सिपह सालार पर पूरा यकीन है। पाक फौज खारिजियों का खात्मा करेगी। दहशतगर्दों की अलगार फिर से है। ये फौजी जवान अपने सीनों पर गोलियां खा रहे हैं। बलोचिस्तान में आग लगी है, हिंदुस्तान की दरअंदाजी है। ये गुमाश्ते कुछ सियासी और कुछ राह से उखड़े हुए लोग इस मुल्क की सालमियत पर हमले करते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की मंजिल हमारा नस्ब-उल-ऐन है। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर ममलिकत मलिक रशीद अहमद का कहना था, इलाके में इलाज और तालीम की सहूलियात को बेहतर करेंगे। इलाके में सड़कों का जाल बिछा देंगे। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक आपको अपडेट करें तो सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ये बताना है कि 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से रिहा करवा लिया है और रिहा होने वालों में 43 मर्द, 26 औरतें और 11 बच्चे शामिल हैं। अहम डेवलपमेंट ये हुई है जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले से मुतालिक सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से रिहा करवा लिया है। इसी से मुतालिक हम तबसरा हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। दहशतगर्दी का सामना है हमारे मुल्क को, लेकिन फौरी तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पॉन्ड करना और फिर रिहा करवा लेना, कैसे कमेंट करेंगे इस सिचुएशन पे? देखिए जी, ये जाफर एक्सप्रेस जिस इलाके से गुजर रही है ये इंतहाई डिफिकल्ट डिफरेंट टेरेन है। यहाँ पे आपको पता है आबादी कम होने की वजह से बड़े चैलेंजेस होते हैं, लेकिन पाक फौज का और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का वहाँ पहुँच के जो पहला ऑपरेशन करना और इसमें 80 लोगों को जो है वो यरगमाली जो थे उनको रिहा करवाना, मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और खास तौर पे आपको पता है बच्चे और खवातीन की बड़ी फिक्र थी सबको, और मेरा ख्याल है सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये जो एक्शन लिया है कि जिसमें बच्चे और खवातीन को रिहा करवाया है, ये काबिल सताइश है। ये दहशतगर्द आपको पता है मुसलसल जो है वो भारत और अफगानिस्तान से कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट भी ले रहे हैं, इनके राब्ते भी हैं। इनको जो भारतीय मीडिया है वो कॉन्टिन्यूसली इनको जो है वो पॉलिटिकल सपोर्ट भी दे रहा है, इनकी मॉरल सपोर्ट भी दहशतगर्दों की कर रहा है, इनकी कवरेज चलाने की कोशिश कर रहा है, इनके सिंपथाइजर्स को ले रहा है और पाकिस्तान को जो है वो मुश्किल स्पॉट में लाके खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, फौज ने, पुलिस ने, इन्होंने ये जो एक्शन लिया है, मैं समझता हूँ कि ये काबिल सताइश है। और इस सिलसिले में ये जो बाकी लोग रह गए ये भी बहुत जल्द जो वो है वो रिहा हो जाएंगे। और असल टास्क तो आपको पता ये है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और कम से कम ट्रॉमा जो है वो लोगों से उसको इस ट्रॉमा से निकाला जाए। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर शख्स इंपॉर्टेंट है, हाँ वो मर्द हो, खातून हो, बच्चा हो, वो कोई भी हो, हर शख्स पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए जरूरी है। इसलिए इंतहाई केयरफुली ये सारे का सारा ये जो प्रोसेस है चल रहा है और इसमें ये जो लोगों को रिहा किया गया है। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई थी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और जो यरगमाल बनाए गए मुसाफिर थे उनको रिहा करवा लिया है। किस तरह से आप एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को? जी हाँ, ये काफी एक तशवीशनाक वाक़या है जिसमें रेलवे को एक ट्रेन को उन्होंने इंटरसेप्ट किया और हॉस्टेज ले लिया, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और दूसरे सर्विसमैन भी हैं। अब ये देखना है कि एक पहला फेज में तो सिचुएशन अभी काफ़ी फ्लूइड है और कुछ यरगमालियों को रिहा करा लिया गया, ये सक्सेस है, अच्छी सक्सेस है और इस पे खिराज तहसीन की मुस्तहक है हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। मगर अभी हमें ये देखना है कि आगे जो बाकी मंदा
गैरकमाली उनकी तहवील में है उनको कैसे रिहा किया जाए और कोई लॉस ऑफ लाइफ ना हो। और इसके बाद हमें ये देखना होगा कि ये सारा जो सिक्योरिटी का निज़ाम है जिस पे पहले तो ये रोड्स को कर रहे थे अटैक्स, अब इन्होंने ट्रेन्स पे अटैक शुरू कर दिया है, तो ये एक राशिद वली साहब बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है इसको, जैसे कि अभी आप भी कह रहे थे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप इस पर भी कमेंट करें, जहां से ये जनरेट हो रही है, इंडिया इसमें मुलविस है, अफगानिस्तान इसमें मुलविस है, किस तरह से हम इस सिचुएशन को काउंटर कर सकते हैं? इंटरनेशनली भी हम इस इशू को रेज करते रहते हैं लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा इस मामले में। जी देखिए, ये एक्सटर्नली अबेटेड है, एक्सटर्नली इंस्पायर्ड है, इसको फुल सपोर्ट हासिल है और पूरा एक इकोसिस्टम है इनकी सपोर्ट का जो इनको रॉ की तरफ से मिल रहा है और उसमें कोई कलाम नहीं है। वी शुड नॉट मिन्स आवर वर्ड्स। और अब ये हम उस नहज पे आ गए हैं कि हमने इसके साथ खुद लड़ना है और डिप्लोमेटिक महाज पे भी लड़ना है, भारत का मकरू जो चेहरा है वो दुनिया के सामने रखना है और जो इंटरनली ऐसे इक़दाम करने हैं जिससे ये उनकी जो ऐसे मजमूम मकासद कामयाब ना हो। हमें बेहतर अब ज़रूरत है कि पिकेटिंग करें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और सर्वेलेंस और प्रोटेक्शन अरेंजमेंट्स बेहतर करें। साथ साथ ये जो जंग है अब उनके मुस्तकरों पे ले जाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब, आप इस सिचुएशन के ऊपर अपना तजिया पेश कर रहे थे। डॉक्टर कमर चीमा आपने भी कमेंट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।